Now, my dear friends, we go into number 5 principle. The number 5 principle is all about use of safer solvents and auxiliaries. Now, what do you mean by this? Solvents, when you talk about, is many times it becomes one of the most integral part of a particular chemical reaction. सॉल्वेंट आपको पता होगा कि वो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है, सोल्यूशन बनाता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू फैसिलिटेट द रिएक्शन टू टेक प्लेस. सो आवर एम इज that whenever we are going to incorporate a solvent की ज़रूरत है to carry out a particular reaction, so we need to make sure that that particular solvent is going to be a safe one. Okay, one of the best example that can be given is the safest solvent is water, most easily available and it is less toxic. Okay, it's cheap as well. Another example can be given is supercritical CO2, carbon dioxide. Okay, at this stage it can behave as a very good solvent. Okay, so this can be a very good alternative to the hazardous say CH2Cl2, dichloromethane or chloroform or CCl4. Okay, these are quite hazardous, quite toxic. So we need to make sure that design a chemical process in such a way that even by making use of water or supercritical carbon dioxide also, they can serve the purpose which these hazardous solvents are trying to solve it. Alright, so that is one particular aim. Many times what happens is the solvents has to be used on a larger scale. जब लार्ज मात्रा में हमें सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ज्यादा प्रमाण में पोल्यूशन होता है. ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ओके, ज्यादा करके सॉल्वेंट्स VOC होते हैं, दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दैट कैन रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन. Okay, respiratory problems. Okay, these are the health problems which are going to be observed in people who are continuously chronic exposure to all these solvents. This has been seen, okay, in the chemical industries. So, in this green technology, there are two aspects. Now, number one is either you replace these hazardous solvents by these safe solvents. Okay, these are considered to be much more safe. तो ये एक पहला तरीका है, या तो उसको रिप्लेस कर डालिए, या तो फिर यू ट्राई टू डिजाइन इन सच अ वे दैट यू डोंट रिक्वायर अ सॉल्वेंट एट ऑल. ओके, ट्राई टू डिजाइन दैट, ओके, जिसमें सॉल्वेंट की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है. तो या तो रिप्लेस करो, ओके, बाय अ सेफर सॉल्वेंट, एंड ऑक्सिलरीज मींस अदर सब्सटेंसेस. ओके, यानी मेरा रॉ मटेरियल है, मतलब मेरा प्रीकर्सर है, सॉल्वेंट है, और एनी अदर रिएक्टेंट आल्सो व्हिच इज रिक्वायर्ड, okay, even say in smaller proportions, so as to make sure that the reaction takes place and we get the desired product. उसको हम लोग auxiliaries बोलते हैं. तो solvent और auxiliaries का या तो आप उसको safe मोड में चाहिए, या फिर reaction का डिजाइन कुछ इस प्रकार से कीजिएगा ताकि the reaction can effectively take place even in the absence of the solvent and the auxiliary substances. So then there is no pressure at all that we need to check out its safety procedures when we are not using it in the first case. Understood this? So ये था about principle number 5, and that is use of safer solvents and auxiliaries. I am sure you have understood this very well. Next is we go into the 6th principle, and that 6th principle is all about designing in such a way so as to carry out energy efficiency. Now, in the beginning of this chapter, my dear friends, I told you that energy crisis is one of the global problem, and chemistry is there to solve it out. And that was what the purpose of green chemistry. So here comes that particular solution, that in green chemistry principle, the 6th one is that we have to design a chemical reaction in such a way that the energy requirement is as low as possible. Okay, energy requirement is as low as possible. We need to ensure that the conditions required for that particular reaction should be carried out at room temperature and pressure.
Okay, so extreme conditions are not required for that particular reaction. अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ही अगर रिएक्शन हो सकता है तो वो सबसे बेहतरीन होगा. ओके, तो इस तरीके से जो एनर्जी क्राइसिस का जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको हम लोग निपट सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिजाइन अ केमिकल रिएक्शन इन सच अ वे. अब ये किस तरीके से कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीका है. पहला है हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, चॉइस ऑफ अ कैटलिस्ट. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ताकि उसका इस्तेमाल हो सकेगा फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ओके, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करो. चॉइस ऑफ अ कैटलिस्ट हैज टू बी वेरी प्रॉपर. समटाइम्स वी यूज एंजाइम्स, सो एंजाइमेटिक रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग ने बेंजीन को एडिपिक एसिड में कन्वर्ट किया था. ओके, बेंजीन का इस्तेमाल नहीं किया था वहाँ पर. हम लोग ने ग्लूकोज का इस्तेमाल किया था और फिर ग्लूकोज का एंजाइमेटिक रिएक्शन करके हमने उसको एडिपिक एसिड में कन्वर्ट किया, जो पॉलीमर में काफ़ी नाम वाला कंपाउंड है, काफ़ी पहचान है उसकी इस इन द पॉलीमर इंडस्ट्री. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइम्स का इस्तेमाल करने का, बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है उसको, ताकि द रिएक्शन कंडीशंस विल बी एज लो एज पॉसिबल. जब हम हीटिंग की बात करते हैं तो कुछ तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोवेव हीटिंग. ओके, माइक्रोवेव हीटिंग करेंगे ताकि यूजिंग अ टेक्नोलॉजी over here. So once again the energy crisis can be solved to a greater extent. So through this microwave heating the reaction can take place. All right, the desired reaction which is going to be taking place. So these are the different ways by means of which, okay, we can make sure that the energy requirement is going to be as low as possible. Choice of a proper catalyst. ओके, पहले तो याद रखिएगा कि मिनिमम कंडीशंस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर. ओके, कैटलिस्ट की जब मैंने बात की तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा ये हासिल कर सकते हैं. बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कैरी आउट ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ओके, फिर हीटिंग का जहाँ तक सवाल आता है, कोई बार ऐसा भी होता था कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन मुमकिन नहीं है. ओके, वी रिक्वायर एनर्जी, तो एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म. Okay, so we can make use of microwave heating. Okay, ताकि हम जो conventional source of energy है उसको बचा पाए, the natural resources उसको हम लोग बचा पाए. Okay, so that it can be used for future generation. जो मैं आपको sustainable development के बारे में बात कर रहा था, उसी नजरिए से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. So I hope you have understood the number 6 principle of green chemistry with respect to what? Energy efficiency. अब दोस्तों कंसीडर करते हैं हम 7th principle. Okay, and the 7th principle is all about use of renewable feedstock. क्या यूज करना है हमें? Renewable feedstock. ये हमें यूज करना है. Renewable means what? The one which is not going to get over, the one which is going to be naturally existing, and the best one is plants. अब ये जब बात होती है, ये जो प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना होता है, तो ज्यादा करके हम बात करेंगे अबाउट विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोकेमिकल्स. ओके, पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में इसका ज्यादा असर दिखाई देता है. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? केमिकल्स को बनाने का है फ्रॉम, जैसे मैंने बताया है, फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस. और रिन्यूएबल सोर्स का मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे दिया, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? प्लांट्स. ओके, रादर देन अदर सोर्सेस सच एज ऑयल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब क्या होता है कि जब हम रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट विल हैपन इज द फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ. ओके, अगर हम लोग ने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज किया, सब खत्म कर दिया, ओके, लिमिटेड स्टॉक में जो है, और उसको वापस हम क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का अगर हम लोग ने इस्तेमाल किया तो फिर आने वाली पीढ़ी को बहुत मुश्किल होगा. ओके, सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, okay, if you are going to connect it to future generation, then of course, okay, what we can say is it's of no use. Okay, cannot be
able or satisfy the needs of the future generation, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है। मैं याद है आपको, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था, यस ओके। एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि न केवल जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी डिमांड्स फुलफिल करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के डिमांड्स भी वो फुलफिल कर सके, और वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं होगा। दूसरी बात है, वो पर्यावरण के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन डालेगा, ओके बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा वो। सो एनवायरमेंटल बर्डन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड ओके बाय मींस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। लेकिन अगर रिन्यूएबल सोर्स यूज किया, सो ऑब्वियसली कि हम लोग क्या बोलेंगे कि पर्यावरण पे उसका ज्यादा दुष्परिणाम नहीं होता, ओके। द साइड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट इज बीइंग डिक्रीज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ओके। वी आर गोइंग टू यूज, जैसे मैंने आपको बोला है, प्लांट्स यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, ओके। अब इसके वजह से व्हाट विल हैपन इज कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन से जो मुझे मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी वेल, ओके। जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग ने एक पूरा chemical process किया हुआ है, that is called as a major product. And apart from major product, many times there are minor products also obtained, okay, which you don't require, but then it's a part of the entire chemical process. I also call it as a waste. So major and minor products are basically going to be what? Biodegradable. अगर हम लोग ने रिन्यूएबल सोर्सेज से ये पूरा रिएक्शन किया तो, और बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स, यानी पर्यावरण को वो हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। Alright, so that is what the aim of this particular principle is, that as much as possible try to use a renewable feedstock, okay, which is going to be in abundance, which can be created, okay, plants can be created, okay, again and again, okay, for generations together. But then if I'm going to talk about oil, then we have a particular reserve of the oil, okay, so that becomes under non-renewable. तो जितना है हमारे पास उतना संभालने की कोशिश करो, okay, that is what the call for the today's generation, so that the future generation can survive. Alright, so that is one aspect with respect to non-renewable resources. और ये वाला है जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अहमियत देनी है कि प्लांट्स में से हम जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में केमिकल प्रोडक्ट्स बनाएं, ओके, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल भी हो, सो दैट पर्यावरण पे उसका दुष्परिणाम ना हो, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 7th प्रिंसिपल वेरी वेल। अब दोस्तों 7 प्रिंसिपल हो गए हैं, अब हम पहुंचते हैं 8वें प्रिंसिपल पे। 8वां प्रिंसिपल बोलता है अबाउट रिड्यूस डेरिवेटिव्स, यानी सिंपल शब्दों में मिनिमाइजेशन of the number of steps। दोस्तों क्या होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, सिंथेसिस मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कई बार डेरिवेटाइजेशन ये प्रोसेस होता है, तो उसको जितना हो सकेगा उससे मिनिमाइज करो या तो उससे अवॉइड करने की कोशिश करो। व्हाट इज डेरिवेटाइजेशन? एंड दैट इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट protecting a particular group or a blocking a particular group, okay, functional group, that is called as derivatization। तो उसको जितना मिनिमाइज करके उतना अच्छा है, क्योंकि इसको अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप या ब्लॉकिंग ग्रुप अगर हम लोग करने जाए तो व्हाट हैपेंस इज इट रिक्वायर्स एडिशनल रिएजेंट्स, ओके, और ज्यादा रिएजेंट्स की जरूरत होगी और जिससे ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। हमें तो वेस्ट कम करना है, ये तो यहाँ पे जनरेट होगा, ऑलराइट। तो कुछ ऐसा रिएक्शन प्रोसेस करना चाहिए ताकि कम से कम स्टेप्स में रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस कंसीडर organic synthesis of मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड, ओके। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना इनटू मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
तो इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन क्या होता है अगर वी गो फॉर अ कन्वेंशनल टेक्निक, डायरेक्ट कन्वेंशन करने जाएंगे तो ये ऐसा वन स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। पहले हमें OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा। सो द प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl। तो उससे क्या होगा, दिस H and this Cl will be removed. This is a protecting group, याद रखिएगा, this is a protecting OH group। अब ये Cl और H निकल जाएगा और क्या मिलेगा मुझे, माइनस HCl मिलेगा। एंड दिस कार्बन नाउ अटैक्स दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, ओके, बिकॉज ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। सो कार्बोकैटायन इज गोइंग टू अटैक ऑक्सीजन और उस वजह से मुझे मिलेगा OCH2 C6H5, ओके। यहां पर एज इट इज ए CHO, ओके। अभी क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन करो। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा COH, दिस विल बी OCH2 C6H5 and then you carry out the deprotection of OH group and as a result of which you get the final product, okay, ऐसा हो जाएगा। So this is meta hydroxy benzaldehyde, this is meta hydroxy benzoic acid, okay. So in both the cases the OH group is there. So without going for a direct oxidation, first the OH group has to be protected. Once the OH group gets protected, then you carry out its oxidation, okay, and then the deprotection. So that's why we get once again the OH group. So this becomes so many number of steps, okay, rather than from this oxidation giving this, okay, उसके वजह ये इतना सब करना पड़ता है, प्रोटेक्शन, डीप्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा। तो उसके वजह से क्या होता है, वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर रीएजेंट, ओके। तो एडिशनल रीएजेंट्स चाहिए, तो उसके वजह से वेस्ट जनरेट होता है, ओके। ऑल दीज प्रॉब्लम्स डू टेक प्लेस, ओके। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि वी कैन मेक यूज ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ओके। ऐसे कुछ कैटलिस्ट ढूंढने होंगे ताकि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ द सिलेक्टिव ग्रुप की जरूरत नहीं है, ओके। डायरेक्टली इट विल ऑक्सीडाइज दिस CHO to COH and you get this particular product, okay. So the number of step reduces and that goes according to the principle number 8, that is reduced derivatives or minimization of number of steps, all right. So this is the 8th principle of green chemistry. I hope you have understood this very well. Now my dear friends, we move on to the number 9 principle, and that is use of catalyst. नाम तो सुना होगा आपने दोस्तों कैटलिस्ट का। एक ऐसा सब्सटेंस है which is going to alter the rate of the reaction without itself undergoing any change. Now उसकी खासियत क्या है कैटलिस्ट की, वो आप जान लीजिए। Number 1 is it is going to increase the selectivity. यानी जब मैं आपको एटम इकोनॉमी के बारे में बता रहा था कि more and more amount or the atoms of the reactants are incorporated into the desired product, okay. So ये यहाँ पर बहुत काम आता है। So it increases the selectivity. Next one is it decreases the wastes, okay. ये दूसरा इसकी खासियत है, decreases the waste products. तीसरा है it reduces the reaction time, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि the reaction goes with a higher speed, okay. And the last and the most important one, and that is it reduces the energy demand. मैंने आपको बोला था energy crisis, all right. This is one of the most important problems, okay, that is going to be facing by the globe, by the entire world, and chemistry is here to give the solution for that. All right, if you remember right in the beginning only, I told you about this. Okay, the global problems, increase in the population. Next one is there is going to be an increase in the pollution, industrial revolution and energy crisis. So pollution और energy crisis ये problems को solve करने के लिए chemistry is ready.
Okay, so catalyst can be used over here, and that's why it decreases the energy demand, and therefore the energy crisis can be solved to greater extent. कुछ examples देना चाहूँगा दोस्तों आपको, जैसे कि iron can be used in the Haber's process, okay, as a catalyst. और Haber's process किसके लिए यूज होता है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. उसी तरीके से V2O5 can be used in the contact process. और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है? H2SO4. उसी प्रकार से Ziegler-Natta catalyst, okay, मतलब it is TiCl4 air Et thrice, that is C2H5 thrice. This is called as Ziegler-Natta catalyst. This is going to be used in the synthesis of high density polyethylene. फिर nickel is used in the hardening of oil. Okay, cobalt catalyst is going to be used in the synthesis of gasoline. तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं. These are all industrial processes, okay, जहां पर हम इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने की वजह से ये सारे फायदे होंगे. एंड दिस इज ऑल गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट? यस, द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. Alright friends, we go into the number 10th principle, and that number 10th principle is all about design degradation. दोस्तों डिजाइन करना है हमें केमिकल्स कुछ इस प्रकार से ताकि उसका डिग्रेडेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? नॉन टॉक्सिक. ओके, उसका जो डिस्कार्डिंग प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाए. इस तरीके का हमें केमिकल्स डिजाइन करना होगा. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिग्रेडेशन व्हिच हैज टू बी व्हाट? नॉन टॉक्सिक, मींस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एनवायरनमेंट. Okay, it should result in a clean environment. Okay, it should not accumulate, जमा नहीं होना चाहिए in the environment and thereby resulting in hazardous waste. Okay, ये इसका मतलब होता है. तो वापस से बोलता हूँ, कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है केमिकल्स ताकि उसका डिग्रेडेशन हो, ओके, स्टेप वाइज डिकम्पोजिशन हो उसका, ओके, ताकि उसको डिस्कार्ड करना है, उसको फेंक देना है, तो वो प्रक्रिया काफी इजी हो जाए. अब जब डिग्रेडेशन की बात होती है, जब स्टेप वाइज उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो जो छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस मिलते हैं उसके डिग्रेडेशन के बाद वो एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए, और इस तरीके से हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाए. ओके, दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज द वर्ड दैट बायोडिग्रेडेशन या biodegradable substances are being given a lot of importance so that it degrades to harmless products. Next is the most important we talk about is with respect to biodegradable, and that is ज़्यादा करके हम polymers biodegradable form में यूज करते हैं आजकल. इंसेक्टिसाइड्स उससे भी हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं ताकि क्या होगा कि जब इंसेक्टिसाइड के जो रेसिड्यू होते हैं वो काफी हानिकारक होते हैं. ओके, ये देखा गया था. तो इसलिए अभी जो नए इंसेक्टिसाइड जो डिजाइन हुए हैं वो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? नॉन टॉक्सिक. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जहां तक हम बात करेंगे अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट, तो जब हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमर्स की जो बात करते हैं, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक का एक पर्टिकुलर मार्क होता है, रिसाइकल मार्क. ओके, शायद आप लोगों ने देखा होगा. दिस इज व्हाट द रिसाइकल मार्क इज ऑल अबाउट. इस तरीके से, ओके, कहीं पर भी आपने देखा होगा तो ऐसा मार्किंग किया रहेगा, ओके, बड़े बड़े आइटम्स के ऊपर आप, ओके, एंड उसके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है. ओके, इधर सेंटर पे नंबर लिखा रहता है, एंड दैट नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर पॉलीमर. ओके, मैं आपको उस कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ. नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो इट इज पेट, मतलब इट इज पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट. ओके, नंबर 2 की बात करेंगे तो इट इज HDPE, हाई डेंसिटी polyethylene. Next one is the number 3rd one is PVC, that is called as polyvinyl chloride.
Number 4 we talk about, and that is LDPE, मतलब it is low density polyethylene. Number 5 is PP, that is polypropylene. Number 6 is PS, मतलब it is polystyrene. And number 7 is other than this, which we also call it as miscellaneous या फिर others. ठीक है, ये सब numbers यहाँ पर लिखे जाते हैं, यहाँ पे सेंटर पे ये ऐसा ट्राइंगल मार्क है, this is the arrow, so that means this is a symbol for what? Recycle. Okay, this is a symbol for what? Recycle. It's by international plastic recycle mark, इसको ऐसा बोला जाता है. और जो नंबरिंग होता है that corresponds to the particular what? Polymer, so that it becomes very easy for the consumer to go for separation, and therefore its degradation, its discarding process becomes much more easier. Understood this? तो ये था दोस्तों प्रिंसिपल नंबर 10, एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा. दोस्तों अभी आगे बढ़ते हम लोग, और हम लोग धीरे धीरे एंड तक पहुंच रहे हैं अभी. यस, सेकेंड लास्ट, that is number 11. Real time analysis for pollution prevention. जैसे दोस्तों मैंने पहले के प्रिंसिपल्स में भी बोला था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें कुछ ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स डेवलप करने होंगे, प्रोसीजर्स टू बी डेवलप, so that what will happen is real time analysis is possible. Real time analysis का मतलब होता है in process, जब प्रोसेस शुरू है तब मॉनिटरिंग किया जा सके, ओके, और साथ में कंट्रोल किया जा सके हैजार्डस सब्सटेंसेस को. हैजार्डस मतलब हानिकारक सब्सटेंसेस को बिफोर इट इज फॉर्म्ड. ये बात समझ में सर, इसलिए यहां पर लिखा है टू प्रिवेंट इट. ओके, रादर देन ट्रीटिंग द हैजार्डस वेस्ट एंड कन्वर्टिंग दैट वी कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल टू अ बायोडिग्रेडेबल, मतलब टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक, ये सब ट्रीटमेंट होता है. ओके, तो वो सब करने के बजाय अगर हैजार्डस सब्सटेंस बने ही नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा. तो इसलिए जब प्रोसेस चल रहा है, ओके, इन प्रोसेस रियल टाइम, तब जाकर कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग करना. पहले तो मॉनिटर करना कि यस कौन से स्टेप पे ऐसे हैजार्डस सब्सटेंसेस बाहर निकल रहे, जो वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है, ताकि हम उसको फिर कैसे कंट्रोल कर सकें. Okay, so that's why it's monitoring as well as controlling the hazardous substances. ताकि वो बने ही नहीं, before its formation, we need to carry out its controlling as well as what? Monitoring. Am I clear with this part? And this is going to be very important in chemical industries as well as nuclear reactors. Okay, ये दोनों जगह पर ये काफी important है, क्योंकि ये दोनों जगह पर there are greater chances कि हमें hazardous waste मिलेगा. ओके, जिसको हम आसानी से बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. न्यूक्लियर वेस्ट इज ऑल्सो अ बिग ग्लोबल इशू. ओके, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट, द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई यूनिट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल. तो ये सब ना हो, इसलिए केमिकल इंडस्ट्रीज और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलप करने का जो टेक्निक है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I hope you are getting this very well. Alright, my dear friends, so we now reach to the final principle, and that is number 12. And that says is nothing but safer chemistry for accident prevention. Okay, दोस्तों, as far as the title is concerned, you must have understood. यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इट विल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स. ओके, यानी द केमिकल प्रोसेसेस हैज टू बी वर वेरी सेफ, ताकि इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स है. नेक्स्ट इज इट कैन बी से एक्सप्लोजन्स, okay, fire,
okay, emissions, okay, all those possibilities can be minimized to a greater extent. For example, अगर मैं केमिकल प्रोसेस यूज करता हूँ कि जहां पर हम गैसेस का प्रयोग करते हैं, तो अगर गैसेस का प्रयोग करेंगे तो ये सारी जो इंसिडेंस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर्ड टू से नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, तो वो उड़ेगा नहीं, एमिट नहीं होगा, एक्सप्लोजन की संभावना काफी कम हो जाती है, एज वेल एज सॉलिड्स। अगर ये हम लोग यूज करेंगे, so this is much more safer as compared to what gases, because the gases can explode, gases can rise very high, it can be emitted. Okay, so all these possibilities can take place over here if you are going to use what gaseous substances as compared to. दोस्तों याद रखिएगा ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, is as compared to what the non-volatile liquids as well as solids, यानी केमिकल प्रोसेसेस ज्यादा से ज्यादा ऐसे डिजाइन करने चाहिए, ओके, ताकि हम लोग नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉलिड्स का प्रयोग करें, ताकि ये जो संभावना है, ओके, एक्सीडेंट्स की जो संभावना है, द पॉसिबिलिटी कैन बी मिनिमाइज इफ नॉट कंप्लीटली इरेडिकेटेड, एलिमिनेटेड। आई होप you have understood this principle, and with this we finish all the 12 principles, the major 12 principles which are being involved in this concept of green chemistry। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सारे 12 principles अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।